आरजे ग्रुप देवे चलो बल्लेबाज भेजे। टॉस जीता क्लियर करेट स्ट्राइकर कर्नाटका क्रिकेट टीम ने और टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। दोनों ही टीम जो कि सेमीफाइनल में जीतकर फाइनल में प्रवेश किया है, तो शायद दोनों टीमों के पास अच्छी बल्लेबाजी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है। गेंदबाजी इनकी ताकत बनी है, तो शायद इस मुकाबले में देखना पड़ेगा संगम प्रीमियर लीग 2026 इस पर्व का चैंपियन कौन बनेगा, टाइटल कौन सी टीम जीतेगी। और ओपनिंग जोड़ी मैदान पर दिखाई देते हुए सरोज प्रामाणिक और उनके साथी बल्लेबाज विशाल, ये दोनों बल्लेबाज दिखाई देते हुए। ऑफिशियल्स हमारे चुकी मैदान पर जाते हुए मिस्टर योगेश उर्फ मुन्ना दाभोलकर और उनके साथी और मिस्टर राजू दाभोलकर, ये अंपायर की जोड़ी मैदान पर दिखाई देते हुए। एक कड़ा मुकाबला देखने को जरूर मिलेगा। दोनों ही टीमों की ताकत देखी जाए तो शायद बराबर के आसपास दिखाई देती हुई, तो शायद एक अच्छा टोटल जरूर बनाने की कोशिश रहेगी आरजे ग्रुप देवेट क्रिकेट टीम। और सामने वाली टीम जो कि कर्नाटका, इनकी ताकत बनी है गेंदबाजी के साथ साथ बड़े बड़े टीम को परास्त किया है। काकोडकर सर। As clear-cut strikers, and they won the toss, opting to bowl first. They got a formidable bowling lineup. They have done an incredible job in the previous game in the semi-finals, and they certainly know how to bowl on this wicket. They have used the conditions well. They know that the ball is not coming onto the bat very nicely. It's very difficult to play the shots, and they will be looking forward here to just maybe accept a total of somewhere around maybe 40 to 45, and they'll fancy themselves to chase that one. But it's going to be very difficult against one of the most formidable outfits, one of the strongest outfit in terms of batting, RJ Group, Devad, Delhi Dhamaka. They have been magnificent. They've got some strong players up there. Saroj Pramanik is a superstar in his own ranks and comes with a big reputation. There is the credentials, 61 runs in 5 innings. Not the best of the average, but this entire tournament, Sangam Premier League, has been dominated here by the bowling side. So you can understand that not too many batters have gone up with the high scores. So it's the bowling that has really been at the top in the Sangam Premier League. All is getting set here for the first ball of the finals, the grand finals of the 2026 edition of the Sangam Premier League, with Sagar Bhandari going to bowl against Saroj Pramanik. What an environment. We're almost 12:30 past here, and the crowd is anxiously waiting online. They are connecting to tennis cricket. We've got great sponsors here who have contributed immensely to the success, and also the viewers who have joined us here on the ground from the nearby areas of Kurcharem, Sawadem, and Kephem, as well as from Margao, and local, obviously, from Sangam. They are always there to support. So now it's all about the finals. It's all about the 6 overs for this team and the 6 overs for the other team. 12 overs of big drama, 12 overs of big entertainment coming up here in the finals. And trying to just stand and deliver over the top on the offside. Not much of a foot movement from Saroj Pramanik, but he's very strong. You can see that the front leg never went there, but that you expect. He's got a lot of power. He's got a lot of strength in his forearms. But Sagar Bhandari has got immense experience. Another one, well bowled, back of length, bowling touch away, and also that height. You can see the bounce is not there on this surface, and that is what is making the shot is very difficult. Shot playing is not that easy. That is once again an indication of what is happening on the surface, and that's why you need to reassess and re-strategize yourself on this surface. Trying to advance down, bowler looking at the batter, tracking his movement, drag the ball short. The batter still went his shot, but hit it down the ground on the surface. That's why I just get a single. Single to get off the mark for Saroj Pramanik and also for RJ Group.
Vishal has come in to give company as an opener. We are expecting maybe not very high scoring finals, but a thrilling contest, just like the second semi-finals. Sagar against the left-hander. Nicely a ball, full length, outside the line of off stump, trying to whip the ball, and just going to get a single. One thing, one aspect that both the batters need to see and need to introspect is rotation of the strike. It should be frequent. It should be farming the strike, and it should be almost every ball, not in adversity. Trying to whack the ball just in that arc, just in that range, but slightly that line was outside the line of off stump. So fetching the ball and hitting with power, difficult on this surface. So they are dealing in singles at the moment, looking for those big strikes. Any batter would love to go for the big ones in the power play overs, but it's not easy. It's sometimes not easy on different wickets like this one. It's 3 on the board so far, 2 for Saroj, 1 single for Vishal. So that's going to be a wide after a lot of thought. After a lot of thought, going for a wide. Sagar Bhandari having a look at the keeper there and not going for the decision. And Sagar was understandably saying that it was a wide. So he comes back into his bowling mark. What a player, what a performer he has been, Sagar Bhandari, throughout whenever he came, many times in Goa. Oh no, he's bowling a no ball and he's apologizing immediately. What has happened over there? We have not seen too many beamers there from any of the bowlers. Maybe because of the wetness of the ball and maybe because of the sweaty palms that happens to many of the bowlers. But it was not intentional. Everyone knows it. It was not intentional. It was difficult for the batter. And now opportunity for the launch. License to go for the big one. The free hit coming up next. Whipping the ball in the air. Might get a boundary. Oh, no, that's not timed that well. Just going to get a couple of runs. So decent first over from Sagar Bhandari. You can see how difficult is the shot making on this surface. The batter tried to whip the ball. Lot of force behind it, but still just scooped around over that bowler as well as over that inner ring and just gets a couple of runs. We are done with 1 over. RJ Group at the moment, 7 without loss. अच्छी शुरुआत कहनी पड़ेगी। अगर टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का फैसला, शायद कम से कम रनों के ऊपर रोकने की कोशिश रहेगी कर्नाटक क्रिकेट टीम की। और सागर भंडारी जिन्होंने शानदार शुरुआत की, किफ़ायतीदार सफलता नहीं मिली, लेकिन मैं कहूँगा पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी, सिर्फ 7 रन खर्च किए। और देखना पड़ेगा दूसरा पावर प्ले और किसके पक्ष में जाएगा। शायद बल्लेबाजी करने वाली टीम आरसी ग्रुप देवेद और उनके सामने जो कि क्लियर क्रेड स्ट्राइकर्स कर्नाटका, पहला ओवर जो कि कर्नाटक पक्ष में चला गया। Well, I think it's a 50-50 over. You cannot say that maybe it's gone in Karnataka. We know that this is not a high-scoring environment. Assessing the situation, if they go by these 7 runs or they go by the 7 or 8 runs, they might get around 45 to 50. And with the bowling lineup and not so much of depth in the batting of clear-cut strikers of Karnataka, we have seen them struggling to get towards that 34-run mark in the earlier semi-finals. So they will be assessing the situation every over. Every over, they are going to reaffirm their position. So you can see once again trying to walk across, trying to hit the ball too hard. He's saying that the ball is not coming onto the bat very nicely. Sometimes a little bit extra bounce, sometimes the low bounce. So it's almost like a double-paced wicket, double-paced in terms of the pace as well as the height we are talking about. Oh, mighty shot from Saroj Pramanik. Ball is not coming onto the bat. He's asking the questions here. Who said that? He said that I am on here at Sangam Premier League. Gigantic 6 from Saroj Pramanik. और रिप्ले में आप देख सकते हो किस तरह से पुल किया, पूरी तरह से पावर जनरेट किया था और गेंद सीमा रेखा के बाहर। बिग वन, बहुत लंबा छक्का सरोज प्रामाणिक के बल्ले से और टीम का स्कोर जो कि 6 रनों के साथ आगे निकलता हुआ टोटल स्कोरबोर्ड के ऊपर 13 रन।
Looking to go for the switch hit. He's going to play his shot. He's frustrated with himself. Highly animated expressions there from Saroj. He feels that he has missed out on that. Maybe lack of bounce. Yeah, that expression says it all. Well covered by tennis cricket. Those expressions, you can see. Frustrated that the ball didn't connect. Another wild swing. This time might be looking for a single. Looking for a run out. Direct hit. He could have gone. Just missed by a whisker. Missed by a whisker. He would have headed straight back into the dugout if it was a direct hit. The keeper taking the chance. And rightly so. There was backing there. You can see the replay on that occasion. Trying to swing very hard. Very big. And a run out. Oh, that missed by just the finest of the distance. Just going over the top of the bails there. So lucky. So the left-hander comes on strike. Vishal. Nicely bowled. Squeezing it out in the covers region. Looking for a second run. Run out on the cards. Good throw. That might be out. That might be out. And that is out. OUT. Saroj Pramanik has to depart. That was risky second run. Wonderful coverage of the ground, coming sharply towards the ball, collecting it cleanly and then throwing it at the non-striker's end, and the bowler doing the rest. Absolute magnificent fielding effort. That is what you required. Saroj Pramanik, you can see, turning sharply, the throw coming in there, and then wonderfully done by the bowler. That's what you want against the strongest batting lineup like RJ Group. The first wicket down, Saroj Pramanik departed, and in comes the new arrival. So Prashant Gharat comes in at number 3. 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर बल्लेबाजी दिखाई देते हुए आरजे ग्रुप देवेत क्रिकेट टीम के शायद पहला रन तेजी के साथ पूरा किया था। वहाँ पे मिसफील्ड नहीं हुआ था, फिर भी तेजी के साथ दौड़े सरोज प्रामाणिक, और जो कि डेंजर जोन पर वो देखने को मिले, और शायद शानदार थ्रो काम तमाम कर दिया। पहले विकेट जो कि रनआउट के रूप में। And this is swatted away for a maximum. Second 6 coming of the over. What a start here by Vishal. Is it Prashant Gharat? It is Vishal. Yeah, Vishal with a 6 there. It was a lower full toss ball, winding up himself, winding for the big swing, and he gets the distance. So bowler missing the mark just by a whisker. That's good enough for the left-hander Vishal to go for the gigantic 6. And हेलो, दूसरा लंबा छक्का देखने को मिला विशाल के बल्ले से। 5 गेंदों का सामना किया 10 रन के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए प्रशांत गरज, जो कि नए बल्लेबाज मैदान पर अभी भी गए, तो शायद 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। मैं कहूंगा अच्छी बल्लेबाजी इस ओवर में देखने को मिली। 2 लंबे छक्के देखने को मिले, एक सरोज प्रामाणिक के बल्ले से निकला था और दूसरे जो कि ओपनिंग बल्लेबाज विशाल के बल्ले से देखने को मिला। तो 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय। 21 धावा 1 गडी बाद। so in comes the third over, and it coming from Manjunath. So Sagar Bhandari bowling the first one, Jayant bowling the second one, and Manjunath has been invited to bowl the third one. परत एकदा योकार करता भवन आसता सुभाष पडले जाय सर, आणि तुम्ही मानाचे स्थान बसका घेवची आणि फायनल जी आसा ती एन्जॉय करची. Nicely bowled on the stumps, looking for a run out, direct hit, shying at the non-strikers and getting an extra. Nothing wrong from the bowler, nothing wrong there. I felt that if the direct hit, it could have been close. He has taken his chances. Sometimes you got to check your chances in the finals. So he was looking for a run out at the non-strikers, and in return concedes an extra run. 23 for 1 as Prashant Gharat just gets himself off the mark with a couple of runs there. Very good run rate at the moment we mentioned. And that is the point I was mentioning. In spite of 7-8 runs in the first over,
they have got the ability to strike big ones. And they have already struck 2 sixes in the second over. That puts them right on the front foot. And that's a big nick. Age hard here in the com box. Prashant Garad has to depart. Well taken by the keeper. Manjunath strikes and is 23 for 2. जेवीए ब्रदर्स विकेट मिलता हुआ और प्रशांत गरज जो कि चहलकदमी करके खेलना चाहते थे, लेकिन वो उतना बढ़िया संपर्क नहीं था और शानदार कैच है जो कि विकेट कीपर के हाथों में चला गया और ये तीसरे विकेट का पतन होता हुआ। आरसी ग्रुप देवेत क्रिकेट टीम जो कि पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस हारने के बाद और मैदान पे नए बल्लेबाज जो कि करण अंबाला। And in comes the big man, Karan Ambala. Abhishek Singh Dallur, his name, but he is popularly known as Karan Ambala. He comes from the name of the place. That's why he's called Karan Ambala. And he was the winner of the player of the series, the prestigious ISPL, the biggest tennis ball cricket tournament that you can see in India. And this was the man who just stole the limelight in that entire ISPL first season. And we saw Jagat Sarkar as well, but he just went out early in the first round. He also came here to perform. But Abhishek Singh Dallur, Karan Ambala is popularly called. He has arrived in the finals. What a performer, what a player. So far, done with the ball, done with the bat, and now time to showcase in the finals. There's a big appeal. Umpire had a close look. Maybe it was drifting down the leg side. Yeah, height might be the factor, but maybe it was also drifting down because with the angle of the ball, the pace was coming in. It was swinging in, and he was not trying to play across. He was trying to play straight, so umpire considers all these aspects, where it has hit, impact in line, what was the angle. Angle was in. Was it hitting the stumps? So there was a little bit of doubt in the minds of the umpire whether it's going to hit the leg stump or not. And whenever doubt is there, umpire goes in favor of the batter. 24 for 2. In the air, a chance this time. Sagar Bandari underneath, and he takes it very easily. Well bowled here as the left-hander was looking good. Bishal departs. He has hit a 6 here before in that over, the second over. This time trying to go downtown over the head of Sagar Bandari. But he was stationed there very nicely and takes a very good catch. विजय ब्रदर्स विकेट मिला है और विशाल को चलता किया, सामने खेलने का जरूर प्रयास किया था, लेकिन ऊंची यहाँ पे गेंद ने ऊंचाई प्राप्त की थी और कोई गलती नहीं कर बैठे फील्डर। आसान सा कैच, शायद और एक झटका मिलता हुआ आरजे ग्रुप देवेट क्रिकेट टीम को। तो नए बल्लेबाजों के मैदान पर दिखाई देते हुए ओमकार देसाई। I think JVA brothers have got a lot of limelight as well because we have seen a lot of wickets falling, wickets on their name. So bowlers are shining here. JVA brothers also shining brightly in Sangam Premier League. 24 for 3. Well, Karan Ambala is there on the screens there and also on the pitch. But we have got our own Karan Ambala with his hairstyle, Abhi, just next to me. Looking almost at the same hairstyle. We can also do it. But Abhi will not copy anyone. He's as original as you can get. Wonderful to see him in that avatar. Very nicely done. 24 for 3. RJ Group. And it will be Karan Ambala who is going to be the center point for the talk about in the finals. Just trying to play across the line. Well bowled, very well bowled. Bowling pace, bowling nippy, bowling full. And the batter trying to just go across the line and trying to whip the ball, flick the ball on the leg side, just missing the line altogether. Goes straight in the hands of the keeper. Well bowled by Manjunath so far. 2 for 2. Exceptionally good. High, long. Is it long? There's a fielder. Yes, it's going to be long. And it's a biggie. That's a mighty shot. Smacked it over the mid-wicket region. Just in his arc, just in his range.
By the time we were praising Manjunath, 2 for 2, in comes the last ball, and it is Omkar who strikes an absolute monster hit. अच्छा शॉट स्पोर्ट्स किंग षटकर देखने को मिला ओमकार देसाई के बल्ले से। ऑफ स्टंप पर एक गेंद थी, थोड़े से शफल हुए और ऑन साइड पर यह धमाका दिखाई देता हुआ। शानदार शॉट, कोई मौका नहीं था फील्डर के पास, उसके ऊपर से गेंद निकलते हुए 6 रन के लिए। 6 रनों के साथ स्कोर आगे निकलता हुआ। जरूर प्रयास किया था फील्डर ने गेंद को रोकने का, लेकिन उससे भी ऊंचाई इस गेंद ने प्राप्त की थी और शायद करण अंबाला जो कि स्वागत करते हुए ओमकार देसाई का। 6 रनों के साथ स्कोर आगे निकला। 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर का खेल शेष है और 3 ओवर का खेल समाप्त हो गया। तो एक अच्छा बल्लेबाजी देखने को मिली। शायद 3 ओवर में और 30 रन बन पाते हैं तो एक अच्छा टोटल देखने को मिलेगा। Yes, I think 60 will be the first target in the mind. When we spoke about that, they have got a very formidable lineup. In spite of losing 3 wickets, they will still go with the hard hands. They will still go for the big shots. They will still try to get a couple of sixes or at least 1 6 in every over. When Karan Ambala is there on the crease, and you've got a stalwart and a legendary player like Omkar Desai, the non-striker, saying you can expect the depth in the batting lineup of this team. RJ Group trying to go for the switch hit, very wide. In comes Jayant. One thing about RJ Group and their batting, every batter is going to come hard against the bowlers. We have not seen that approach. They believe in their strength. They believe in their abilities. Swung away and finds a gap. Switching across for a boundary towards the deep third man backward point region. And that's goes the fast hands from Karan Ambala. That's the first boundary coming from his bat. साउली क्रिएशन ये चौका देखने को मिला, गेंद को आने दिया और उसके बाद में स्विच हिट का शानदार शॉट। कोई मौका नहीं था फील्डर के पास और गेंद सीधी निकलते हुए बाउंड्री के थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। 4 रनों के साथ स्कोर आगे निकलता हुआ। 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर जो कि चौथे ओवर का खेल शुरू होता हुआ। जयंत जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर दिखाई देते हुए। Whenever you see a boundary being hit, there is a field change prompted immediately by the bowler. Might be we have to wait for the call. And it's a no ball, yes, rightly so, above the waist height. So the free hit coming up next, not a good option. Is Karan Ambala on strike? He comes with a reputation that every ball is a free hit. And you are giving an additional free hit to him. So don't do that against Karan Ambala. He is already looking for the big strike. Ready to go big in the finals as Sangam Premier League. Looking to strike downtown. Has not middled the ball. Looking for a couple of runs. This is really brilliant running with the wickets. Direct hit. But will it be referred here or umpire feels? Yes, it's referred. Umpire don't want to take a risk. Understandably, it's the big finals. 10 lakh prize money. 10 lakh prize money is at worth. The winners are going to get 10 lakh. The runners-up are going to get 5 lakh. So there is a difference of 5 lakh rupees. So you can imagine so much of prize at stake. And that's why every decision is an important decision. Umpire rightly referring on top. So we are assessing the situation. Not out? Not out. So 2 runs it is. So good running, wonderful running there. He was looking for the hard hit on that free hit. Just not middling the ball, but also has the ability to scamper for quick doubles. Cricket is not only about those boundaries and sixes. You got to be very measured and calculative in the big match. This is another time that he has faltered in his run-up. Sometimes you feel a tired effort. It's not easy under these humid conditions. Although the rain has just caused a little bit calmer influence here in the atmosphere. Much pleasing compared to what it was during the day. This might be
A six. This might be a six. No, just inside. What a timing that was. I thought it was going for the six. Maybe these are bigger boundaries. Any other place, this could have gone for the 6 runs. Was it a chance? I was slightly unsighted there, but you can see the stretch there. Long levers from Karan Ambala. And he reached there. Once you reach there, you expect to take the catches. But good effort. No short of the effort here from clear-cut strikers of Karnataka. Just a single taken. Moves the score to 39. They already got 9 runs of this over. Omkar going across the line. Big swing. Just going to get a single. Good running. And they might get one more. No, that is good backup. Good to see Omkar very fit. Much fitter than I saw him a couple of years back. Looking very, very good with his swing. Must have definitely worked hard in the gym as well as with his fitness. He is a legendary cricketer. Great player. Great to see him watch. Nicely cut away. Very nicely done. Very fine piece of cricket here. Gets the boundary. What a lovely shot. Absolute pleasure to watch this square cut here from Karan Ambala. We have seen scorching hits on the mid-wicket region and in the long-on region with lot of power. This is pure finesse. Absolute pure finesse and pure class here from Karan Ambala at the backward point. Proper cricketing shot. Conventional cricket as well can be played by this boy. That's why he's a star. 44 3 विकेट के नुकसान पर करण खेल रहे 11 रन के ऊपर, ओमकार जो कि 6 रनों के पास. Trying to play a forehand tennis ball cricket shot. Almost played in lawn tennis. And sometimes the smashes in badminton. That also comes handy with such a bounce there. Smile on the face of Omkar and Karan Ambala. As Karan Ambala takes a strike after 4 overs, RJ Group very strongly going towards that goal. 45 for 3. 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ. 45 3 विकेट के नुकसान पर एक अच्छा टोटल देखने को जरूर मिलेगा. आने वाले 2 ओवर का खेल बाकी है और शायद दोनों ही बल्लेबाज जो कि प्रतिभाहीन बल्लेबाज है, करण अंबाला और उनके साथ ओमकार देसाई, मैन फ्रॉम कुर्ला, मुंबई के बहुत बड़े सितारे हैं, तो शायद एक छक्का जरूर उन्होंने लगाया. तो आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करने का प्रयास रहेगा ओमकार देसाई. तो शायद आने वाले 2 ओवर में किस तरह से गेंदबाजी रहेंगे कर्नाटक क्रिकेट टीम की ओर से, ये देखना पड़ेगा. लगभग शायद 60 के आसपास लेकर जाने का मौका रहेगा आरजे ग्रुप इनके पास अच्छा टोटल बनाने का. You can see at the background people on the streets as well. People on their 2-wheelers, close to their 4-wheelers, watching these finals. We are in the 5th over now. Looking to play that falling sweep. Ball hitting the back of the bat and going down towards the third man. And the fielder, oh, you have taken 3 runs there. I think it's weak fielder there in that third man region. And they have run 3. They have stormed 3 there and stolen 3. That was just maybe 1 or couple of runs. Karan Ambala, look at there, the sweat is pouring. In spite of that sweat is pouring, there is still a lot of gas left in this man. That's why he is a special man on that 22 yards. Again, shot making has been difficult. Scooped it, same fielder. This time, the ball comes straight to him. And it will be a strike back to Karan Ambala. They are moving really well here. They have not considered too many dot balls. Viraj Tendulkar, as a scorer, has really written the script very nicely. Wonderful handwriting of Viraj. And I just see just 4 dot balls in that entire inning so far. And that is the important aspect in the finals. Nicely bowled. Very nicely. He was winding up on the leg side, just cramped in for room, angled the ball back in on his legs. So he had to squeeze it out for a single on the offside. And that's a 50 up here for RJ Group in the 5th over. I think they have achieved the first target, the first goal. The second goal might be just around 65.
65 might not be easy on a wicket like this. This team, clear red strikers, have got great bowling lineup, but the strength in batting is a question mark. Another one winding up on the leg side. Just goes straight in the hands of the keeper. Little low bounce there. Yeah. That is exactly what he's telling. Little low bounce. Sometimes with the low bounce, you might have to also go low as a batter to strike it big. If you stand and deliver, it might not just arrive onto the ball. You just need to go down a little bit and climb on top of the ball. That's the experience of Omkar. He learned it very quickly and hope that he does a good job next time around. This time he does a good job. I told you, oh, there's a fielder straight in his throat. He timed the ball well, picked the slower balls, but just found the fielder straight into his hands. No mistake there. And good looking Omkar Desai has to depart. चौथे विकेट का पतन होता है। ओमकार देसाई जो कि ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, जेवीए विकेट्स देखने को मिला, शायद मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन उतना संपर्क अच्छा नहीं था और शानदार कैच मिड विकेट बाउंड्री पर, कोई गलती नहीं गलती नहीं कर बैठे और आसान सा कैच को लपका दिया फील्डर ने। चौथे विकेट का पतन होता हुआ आरजे ग्रुप इस टीम का, और शायद मंजुनाथ को यह सफलता मिलती हुई थोड़ी सी निराश लगते हुए ओमकार देसाई, उनको मालूम था एक बड़ा शॉट जरूर मिलना चाहिए था, लेकिन शायद 6 रनों के ऊपर आउट होकर वापस लौटते हुए ओमकार देसाई। तो नए बल्लेबाज जो कि रवि बनारस। Ravi Banaras coming from UP, Banaras area, Banaras region, and that's the name. Let's just like Karan Ambala, putting the name of his name, village there, and same Ravi Banaras is coming from Banaras. And he comes, he's a big player. He is not a small name, Ravi Banaras. I've seen him in the President Cup, in the recently concluded President Cup in Mumbai as well, where he was a important part of that Uttaranchal team. The 5 over done, RJ Group 50 for 4. शानदार गेंदबाजी पुरुषोत्तम की देखने को मिली। पहली गेंद के ऊपर 3 रन जरूर निकले थे, लेकिन उसके बाद में एक लेग बाइज देखने को मिला, सिंगल बना, उसके बाद में बिंदी गेंद, विकेट और बिंदी गेंद। शानदार गेंदबाजी, जिस तरह से विश्वास दिया था टीम ने और उसी विश्वास को अपने नक्शे कदमों के ऊपर लेकर आया और शानदार गेंदबाजी, कोई मौका नहीं दिया बड़े शॉट खेलने के लिए। 50 रन 4 विकेट के नुकसान पर, जो कि इस इनिंग का आखिरी ओवर, और देखना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक करण अंबाला को मिलेगा तो शायद वो बड़े शॉट के लिए जाएंगे, लेकिन रवि बनारस भी एक अच्छे बल्लेबाज है, उनको भी हार्ड बिग हिटर माना जाता है, तो शायद उनके पास काबिलियत है, तो शायद आखिरी ओवर में जरूर घमासान देखने को मिलेगा। Yes, Purvanchal player, he's a big name, Ravi Banaras. So you can see that this team, how much strength is. Saroj Pramani coming as an opener with Bishal, and then Prashant Gharat, Karan Ambala, Omkar Desai, Ravi Banaras. This RJ Group team has come from all over India. They come from Punjab. They've got players from Uttar Pradesh. They've got player from Maharashtra. They have player from West Bengal. They've got player from Haryana. They combine the best player from all the states running for the couple and giving strike to Karan Ambala. That's good thinking here from Ravi Banaras. That's the kind of cricket. If you're not getting those boundaries, if you're not getting the sixes, get your best batter, and the batter who has got great striking ability, who can clear the fence very easily on strike into the last over. Just last 5 balls left. So if you can smoke a couple of hits after the park, then it might be more entertainment for the crowd who is waiting anxiously for his finish. Missed the mark. Might just get a single. It's going to be Ravi Banaras who is going to keep the strike. Karan Ambala desperately itching to get towards the striking end. But Ravi Banaras said, wait mate, I am also there. Don't worry, I can strike it big. So Ravi Banaras was waiting for his opportunity. He gets his opportunity now. And I've seen him striking
in some of the biggest grounds. He is a explosion if he strikes one. Ravi Banaras hit a crucial couple of boundaries when 34 runs were required in 12 balls. In the quarterfinal, this time he gets the inside edge, and oh, that's stopped here, but might get a couple. No, they decide against it. Ravi Banaras wants the couple of runs. He gets those two. He knows the value of every run. Very important. Very, very important. We never know what is in stores in the future. The match might go very close, and this one run might also be handy. So that's why the coaches tell you never lose an opportunity of a single. Looking for the strike, just does not connect. The ball doesn't come on as easily. Karan Ambala has spent more time. The score is 56. 56 at the moment for the loss of 4. Couple of balls left. Kafil has bowled a decent over. Quite decent. So they might be reassessing the situation of the ball. The ball just gets a tinge of black on its surface when it's rolling on the outfield because of the dampness on the outfield. Well bowled, very well bowled. Perfect Yorker, a wideish Yorker. Even he was winding up for the big one. There is no chance to hit that particular ball. Well bowled, explicitly good bowling here from Kafil. So will be the last ball. 56 for 4. Can he strike big one? Can he finish off on a high note? Karan Ambala. Oh, he misses the full toss one. And it might just be a single. He's a tall boy. So might be looking to storm. There is no one down. And we have to wait. Have they got one? Oh, this is poor. This is poor here from clear-cut strikers. There was no one there at the non-strikers. So keeper was searching for someone at the non-strikers. He didn't find anyone. So he had to wait for the tricky run out at the striker's end. Has he got one? It has been referred on top. But very smart from Karan Ambala. Understanding that I could just steal one more extra run in the finals, and was little poor here, scratchy there from Clear Cred, and he has made it in. We have to wait. And couple of runs. This is brilliant. Brilliant from Karan Ambala. Stealing that extra run out of nowhere. There was never a second in it. And that speaks about how much hard work, how much clever and intelligence thoughts you got to put on that wicket. And that is what they have done. RJ Group has managed to get 58 for the loss of 4 wickets in that managed 6 overs, and 59 runs is the target. Oh, the Pradeep. नक्कीच 6 षटकांचा सामना समाप्त झालाय. 58 धावा धावफलकावरती 59 धावांचा पाठलाग करावा लागेल चॅम्पियन टायटल जिंकण्यासाठी. या स्पर्धेचं अगदी फलंदाजीमध्ये आपण पाहतोय सरोज प्रामाणिक ज्याने 8 चेंडूंवरती 9 धावा जमवल्या धावचीच्या स्वरूपात, तो बाद झालाय. विशाल ज्याने 6 चेंडूंवरती 10 धावा जमवल्या. प्रशांत घरत मात्र आज तेवढीच चांगली कामगिरी पाहता आली नाही, फक्त 2 धावा. करण अंबाला महत्त्वपूर्ण योगदान म्हणावं लागेल. 13 चेंडू 20 धावा. ओमकार देसाई 6 चेंडूंवरती 6 धावा आणि रवी बनारस 3 चेंडूंवरती 3 धावा. एक्स्ट्रामध्ये अतिरिक्त आपण पाहतोय 8 धावा आणि 6 षटकांमध्ये 58 धावा. 59 धावांचा पाठलाग करावा लागेल. गोलंदाजीमध्ये जर पाहिलं तर सागर भंडारी ज्याने 1 षटक हाताळलं 7 धावा खर्च केल्या. जयंत ज्याने 2 षटकांमध्ये 28 धावा खर्च केल्या. मंजुनाथ एका षटकामध्ये 8 धावा 2 गडी बाद. पुरुषोत्तम चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल. प्रभावी एका षटकामध्ये 4 धावा 1 गडी बाद. आणि काफिल ज्याने शेवटचं स्लॉगवरचं षटक हाताळलं 7 धावा. एकूण धावसंख्या पाहिली तर 58 4 गडी बाद. रन रेट पाहिलं तर 9.67 आपल्याला पाहायला मिळत आहे. म्हणजे प्रति षटकांमध्ये फॉल ऑफ विकेट्स आपण जर पाहिलं तर पहिला गडी बाद झालाय 15 धावसंख्येवरती, दुसरा गडी बाद 23 धावसंख्येवरती झालाय, तिसरा 24 या धावसंख्येवरती आणि 50 या धावसंख्येवरती चौथा गडी बाद. म्हणजे आतापर्यंत 4 गडी बाद 58 ही धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळाली. 59 धावांचा यशस्वी पाठलाग होईल की 58 धावांचा बचाव केला जाईल. नक्कीच मी
धन्यवाद देऊ इच्छितो श्री गौरवजी सावंत, त्याचबरोबर सन्मान श्री सूर्यदत्त नाईक आणि पूर्ण सांगेम प्रीमियर लीग ऑर्गनायझर कमिटी की ज्यांनी मला दुसऱ्यांदा संधी दिली या स्पर्धेत समालोचन करण्यासाठी, त्या सर्व ऑर्गनायझर कमिटीचं मी मनापासून धन्यवाद आभार व्यक्त करतोय. ऐकूयात डावाला जशी सुरुवात होईल, मायक्रोफोनवरती श्री प्रसाद परब सर आणि त्यांच्यासोबत श्री सनी शेटे. Yes, and small partnership. They started off with 15, then 8, and then a very good partnership about 26 for the fourth wicket. That is exactly what set the tone, and is still 6 overs left. We don't know the winners yet. We don't know the champions who is going to be in the next 36 balls, and for maybe next half an hour or 40 minutes. It's been a wonderful environment. Started on 21st of April, and 16 teams participated here. 16 All India Open teams participated, and out of these, 2 teams are battling it out for the championship. 4 nights of league games and those league stages, playing round robin format, and then we ended up in the semi-finals and now into the finals. So much of entertainment, so much of excitement, so much of drama, so much of sixes, so many boundaries, and so many wickets have been witnessed. But finally, it's all about the crown. It's all about the championship, and it's going to be a special night here for one of these teams. Special night for the players who are going to lift this championship for one more edition. This is 2026 edition. Sangam Premier League has been witnessing a lot of big recognition as one of the biggest tournament in Goa, and also making headlines across India, just globally, because of so many popular stars who we see and who we follow in our daily lives in cricket have come here, and they are definitely performing at their best abilities. Tennis cricket has been exceptional. Suryadat is giving up so much of things here. Every time something new. They have taken a big step here, the organizers, from day cricket to the night cricket. Floodlight cricket is something very, very innovative and very nice. Just because floodlight cricket can be seen at a much calmer environment where people are free, they get free time after their official work, and they can come and witness the game of cricket. So that's one more value addition here for the Sangam Premier League. So organizers have put a lot of thought and lot of good thinking, planning, and good execution has gone. So thank you very much for Gaurav as well from tennis cricket, as well as Suryadat Naik and entire team, organizing team. Thank you to MLA and Minister Shri Subhash Faldesai for gracing the function here in the finals. His invaluable contribution has made it possible to take the next step forward and think big here for the organizers. So thank you everyone, and we'll see you next time around. From Harish Kakurkar. बहुत बहुत शुक्रिया हरीश काकड़ और प्रदीप देवुलकर. चलो सलामी बल्लेबाज भेजने ग्राउंड के अंदर. क्लियर कट स्ट्राइकर्स गोल्ड कर्नाटका टीम. सांगम प्रीमियर लीग की इस साल की आखिरी 6 ओवर का खेल शेष, जहां पे 59 रन बनाने, रिक्वायर्ड रन रेट लगभग 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने होंगे. बल्लेबाजी करती हुई टीम दिखाई देगी, वो ग्राउंड के अंदर जाएगी वो बल्लेबाजी करने के लिए. क्लियर कट स्ट्राइकर्स गोल्ड कर्नाटका टीम. पहले सत्र में अच्छी बल्लेबाजी हुई, हालांकि 2 ओवर का जो कोठा पूरा किया जयंत ने वो थोड़ा सा महंगा साबित हुआ, और बाकी गेंदबाजों ने सिंगल डिजिट में रन खर्च किए. एक और सागर भंडारी. सागर भंडारी 1 और 7 रन, कोई विकेट नहीं. मंजुनाथ 1 और 8 रन 2 विकेट. पुरुषोत्तम 1 और 4 रन और 1 विकेट, और काफिल 1 और 7 रन, कोई विकेट नहीं. तो बाकी सब 4 गेंदबाजों ने जिस तरह से गेंदबाजी की है, उनने सिंगल डिजिट में रन खर्च किए, लेकिन एकमात्र गेंदबाज जहां पे उन्होंने काफी रन खर्च किए, विकेट मिला नहीं, वो जयंत को. और आइए देखते हैं फिर एक बार ग्राउंड के अंदर बल्लेबाजी के लिए 2 बल्लेबाज उतरेंगे बल्लेबाजी के लिए. हमेशा से यही जोड़ी देखने को मिली है क्लियर कट स्ट्राइकर्स गोल्ड कर्नाटका टीम की तरफ से. वो शिवा और मुरली तैयार होते हुए ग्राउंड के अंदर जाने के लिए.
वी आल्सो से थैंक्स टू अवर ऑल वेल विशर्स। काफ़ी बड़ा सहयोग रहा है सभी का दिल की गहराई से इस्तकबाल करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। समीर सुधाकर रेवणकर, सदगुरु स्टोर्स आनंद बोरकर, लक्ष्य स्पोर्ट्स अमृत गावकर, कृषि केंद्र प्रोपराइटर अमेय साळेलकर, शांतदुर्गा रेस्टोरेंट आनंद नाईक, प्रकाश एल गावकर LIC एजेंट, हरिओम लाइट्स, एस हैकाल 7 हैकाल इंटरप्राइजेस फैजान शेख, और स्पेशली खास करके वो इंडिविजुअल प्राइजेस आप देख रहे हैं उसमें भी मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा सभी हमारे स्पॉन्सर्स का। उसके साथ एवा फैमिली रेस्टोरेंट एंड बार, मारुति स्टील, सपना स्टील एंड किचन गैलरी, सदाबहार संजय रायकर, सत्यवान गावकर। ये देखिए स्क्रीन के ऊपर काफी मेहनत है इस चेहरे की, अल्लाह बख्श। ग्राउंड के अंदर अगर देखा जाए तो मैच शुरू होने से पहले ग्राउंड की विकेट के ऊपर जिस तरह से वहाँ पे लाइन चाहिए, पॉपिंग रेंज चाहिए और किस तरह से होनी चाहिए, और उसके साथ विकेट का देखभाल भी करते हुए हमारे अल्लाह बख्श, उनका भी दिल के गहरे से इस्तकबाल। और कल उनका खुद का एक टूर्नामेंट वहाँ पे होने वाला है, तो काफ़ी देखभाल करते हुए विकेट की, उसके लिए ऑल द बेस्ट अल्लाह बख्श को। काइटन परेरा, शेख इब्राहिम, सैयद हारून, सैबी फर्नांडिस, शेख समरन, अमित, अनौश फर्नांडिस, संजय नाइक, भानुदास देसाई एंड इनास फर्नांडिस एंड कुट्टी। सो थैंक यू सो मच। और उसके साथ हमारे इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए काफ़ी बड़ा योगदान हमारे MLA सुभाष जी देसाई, काबराल, राजू मापारी, कैवल साळगावकर ब्रदर्स, जेसन परेरा, DJ फार्म्स, संजय देसाई, स्टाइल हाउस, सदानंद नाइक और दिनेश तुकाराम सावंत जुड़ जाते हैं इस सेकंड इनिंग में। गेंदबाजी मोर्चे पे आते हुए गेंदबाज सरोज प्रामाणिक, और सामने उनका गेंदबाजी का सामना करने के लिए मुरली। पहली गेंद लेग कटर बॉल, उछाल भी था इस गेंद के ऊपर, हालांकि बल्लेबाज थोड़ा सा रुक के इस गेंद को पुल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन टाइमिंग नहीं कर पाए, और पहली गेंद यहां से डॉट। 59 रन बनाने मैच को जीतने के लिए 6 ओवर के मुकाबले में। ये देखिए ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद, फिर एक बार लेग कटर, ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को, बाहर जा रही थी गेंद को, इस गेंद को ऑन साइड में पुल करने की कोशिश। हालांकि ऐसे शॉट बखूबी बनाते हैं अपने बल्ले से, मुरली उसी के लिए तो जाने जाते हैं, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद थी, वहां पे ललचाया था, बाहर बुलाया था, और दूसरी गेंद वहां पे बैक टू बैक डॉट सरोज प्रामाणिक की। हवा में गेंद है, खिलाड़ी तलाश कर रहे हैं, और एक गेंद उसके हाथ में, सीधी उनके हाथ में, तलाश कर रहे थे, गेंद हवा में काफी देर खड़ी हो गई थी, और आसान सा कैच वहां पे बनता हुआ स्क्वायर की दिशा में, खिलाड़ी के हाथ में ये गेंद जाती हुई, और पहला झटका उत्तर लगता हुआ 0 रन के ऊपर। यहाँ पे खाता खोलने का मौका भी नहीं मिला मुरली को, और पहला विकेट गिरता हुआ JVA ब्रदर्स विकेट। आप देख सकते हैं रिप्ले में किस प्रकार के साथ गेंदबाजी की थी सरोज प्रामाणिक ने। गुड लेंथ के ऊपर ये गेंद हिट हुई, और जो एलिवेशन चाहिए था वो ठीक तरह से मिला नहीं, इसके कारण बहुत ऊंची ये गेंद गई, और आसान नहीं होता इस रात के समय में ऐसे कैचेस पकड़ना, लेकिन उस काम को आसान बनाया वहां पर फील्डर ने, और पहला झटका यहाँ पर 0 के स्कोर के ऊपर लगता हुआ। पहले जोड़ी से काफी उम्मीदें थी जरूर टीम के ओनर और टीम के कप्तान हरी को, लेकिन उसके ऊपर खरे नहीं उतर पाए। मुरली सबसे अहम मैच में यहाँ पे आउट होते हुए, और पहला झटका लगता हुआ 0 रन के ऊपर। फर्स्ट विकेट डाउन ऑन 0। न्यू बैट्समैन नाउ द राजेश पुजारी अर्थात राजा शालिग्रामा, 1 डाउन बैट्समैन। काम एम कूल क्रिकेटर, अब तक 109 रन इस श्रृंखला में बना चुके हैं। तो जब भी ग्राउंड के अंदर आए हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम नॉट आउट रहे हैं, और हर मैच में उनका बल्ला बोला है। टेक्निकल साउंड क्रिकेटर राजेश ऑन स्ट्राइक। अब काफी बड़ी जिम्मेदारी, 59 रन अभी भी बनाने मैच को जीतने के लिए। वो बैकफुट पे चले गए, विकेट कीपर बीट हो गए, बल्लेबाज बीट हो गए, और गेंद थोड़ी सी डाइवर्ट होती हुई स्क्वायर लेग की दिशा में, वहां से रन मिलेगा नहीं। जिस तरह से गेंद आ रही है, मेरिट के ऊपर खेलना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा बल्लेबाजी करने वाली टीम के ऊपर। आप सामने देख रहे हैं गेंदबाज सरोज प्रामाणिक अब तक 4 गेंदें बिंदी,
बॉटम हैंड उछाल था इस गेंद के ऊपर, उसके बाद थोड़ा सा पीछे रुके और संभल के इस बल्ले को सामने लेने आने के बाद गेंद को सिर्फ स्टीयर किया कवर पॉइंट की दिशा में और वहां से एक रन बटोर लिया, एक रन पूरा किया और एक रन के साथ टीम का खाता खुलता हुआ वो बल्लेबाज राजेश पुजारी के बल्ले से। इस ओवर के आखिरी गेंद, पावर प्ले की आखिरी गेंद, पहले पावर प्ले में काफी इकोनॉमिकल गेंदबाजी सरोज प्रामाणिक की। 1 loss of 1 and the last ball on strike शिवा। ओहो ये देखिए स्टंप के सामने पा गए, जैसे देखा बल्लेबाज बाहर निकल रहे हैं, स्टंप्स के सामने गेंद को फेंका, मिडल स्टिक के ऊपर लगभग ये गेंद थी और वहां पे पग बांधा आउट करार दिए गए वो बल्लेबाज शिवा। जेवीए ब्रदर्स विकेट। आप देख सकते हैं रिप्ले में किस प्रकार के साथ सटीक ये गेंद थी और ये देखिए सामने पा गए विकेट के, बगैर किसी यहाँ पर रन से, बगैर किसी नुकसान से यहाँ पर विकेट यहाँ पर हासिल होता हुआ सरोज प्रामाणिक को। एक रन एक ओवर समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर। सर अगर मैं बात करूं तो पिछले मुकाबले में, पिछले सेमीफाइनल के मुकाबले में 30 रन बनाते बनाते बहुत स्ट्रगल किया था कर्नाटक टीम ने, लेकिन आज अग्नि परीक्षा होगी इस मेगा फाइनल के मुकाबले में, क्योंकि कुल मिलाकर 59 रनों का लक्ष्य सामने है उनके। और महज एक ही रन बनाए पहले ओवर में, कुछ खास नहीं कर पाए दोनों बल्लेबाज, सलामी बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाए, कुछ खाता वहां पे खोल नहीं पाए, रन नहीं बना पाए और 0 के ऊपर निजी रन के ऊपर आउट होते हुए 2 विकेटों का नुकसान, रन संख्या महज 1। देखना होगा अब ये जो जोड़ी ग्राउंड के अंदर आपको दिखाई दे रही है राजेश और सागर, ये कहां तक अपनी टीम को लेके जाएंगे, क्योंकि लक्ष्य काफी बड़ा है। जिस तरह से अब यहाँ पे हमारे सनी ने जिक्र किया कि पिछले मैच में 33 रन बनाने के लिए आखिरी ओवर तक वो मैच को लेके आए थे, लेकिन इस मैच में अगर देखा जाए तो पहले इनिंग में तेजी के साथ रन बने हैं, आपको भी कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन अब यहाँ पे गेंदबाजी मोर्चे पे पावर प्ले का दूसरा ओवर लेके आएंगे प्रज्योत अंबीरे। सामने है राजेश, पहली गेंद के साथ हमसे दूर जाते हुए प्रज्योत। ऑप्शन के बाद ये गेंद ड्राइव करने की कोशिश, इनसाइड लगाए, विकेट कीपर बीट हो गए, फाइनल के खिलाड़ी गेंद पे आएंगे, गेंद को कवर करेंगे और तब तक 1 रन का इजाफा टीम के खाते में होता हुआ स्ट्रगल जारी है। यहाँ पे गेंदबाज परेशान तो जरूर कर रहे हैं बल्लेबाजों को, लेकिन वहां से भी आपको रास्ता निकालना होगा, रन बनाने होंगे। 59 रनों का पीछा करना इतना आसान नहीं होगा क्लियर कट स्ट्राइकर्स गोल्ड कर्नाटका टीम को। सामने सागर, ऑप्शन के बाहर ये गेंद काफी दूर ये रखा बल्लेबाज से, ड्राइव करने की कोशिश और सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में और एक बॉल डॉट। इस ओवर की पहली गेंद डॉट, जहां पे गेंदबाजी आप देख रहे प्रज्योत अंबीरे, बल्लेबाज को देखा जैसे ऑप्शन के थोड़े से बाहर खड़े हो गए थे, उसके बाद बाहर गेंद करके बैठे वहां पे, थोड़ी सी लेग कटर बॉल और सीधे विकेट कीपर के पास, ओमकार के पास। 2 लॉस ऑफ 2। ये आंकड़ा जब दिखता है तो ऐसा लगता है कि मैच क्रिकेट का मैच नहीं, फुटबॉल का मैच चल रहा है। 2-2 फुल टॉस, ये गेंद नो बॉल का इशारा अंपायर का, हवा में गेंद खड़ी हो गई, गेंद को कवर करेंगे खिलाड़ी, लेकिन अंपायर का इशारा तब तक आता हुआ वो नो बॉल का, ओवर द वेस्ट ये गेंद और उसी के साथ और एक रन टीम के खाते में जोड़ा जाएगा। मुझे लगता है कुछ अतिरिक्त करने का प्रयास था, जड़ में डालना चाहते थे जरूर, लेकिन हाथ से छूटी वो गेंद, इसके कारण नो बॉल करा दी है अंपायर ने। तोहफा यहाँ पर मिलता हुआ, क्या उस तोहफे को कबूल कर पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अब मोमेंटम शिफ्ट करने के लिए एक मौका है राजेश पुजारी के पास, बड़े शॉट के साथ जाने की कोशिश करनी होगी। फ्री हिट बॉल लॉन्ग ऑन की दिशा में, वहां पे करण डीप में खिलाड़ी मौजूद है, मिड विकेट की दिशा में पावर प्ले दूसरा जारी है, महज 2 खिलाड़ी दायरे के बाहर रहेंगे और लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर, करण आते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खिलाड़ी मनीष राठी। काफी भारी ये गेंद और वाइड बॉल का सिग्नल आता हुआ अंपायर का। बल्लेबाज से बचने की कोशिश वहां पे जरूर करने की कोशिश है गेंदबाज प्रज्योत की, लेकिन काफी दूर कर बैठे, दूसरे मोहल्ले में गेंद कर बैठे और ये वाइड का इशारा आता हुआ। फ्री हिट कंटिन्यू रहेगा अगली गेंद के ऊपर, वो बल्लेबाज स्ट्राइक एंड के ऊपर वो राजेश के लिए। 5 लॉस ऑफ 2 इन द सेकंड ओवर, पावर प्ले इन प्रोग्रेस, नेक्स्ट बॉल फ्री हिट। ऑन साइड में गेंद को पुल किया, एलिवेशन मिला नहीं इस शॉट को,
डीप पे खिलाड़ी मौजूद है, स्क्वायर की दिशा में गेंद को कवर करेंगे, गेंद को कवर करने के बाद मैच 1 रन मिलेगा। सटीक थ्रो मारा है सीधे विकेट कीपर के पास और महज मिलेगा 1 रन। टीम की रन संख्या आगे बढ़ेगी स्कोर कार्ड पर कुल मिला के 6। 59 रनों का पीछा करते हुए अभी भी 27 गेंदों का खेल शेष है और 53 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। 53 फ्रॉम 27 डिलीवरी। सागर भंडारी को न्योता दे रहे, बाहर बुला रहे हैं। गेंद टप्पा गिरने के बाद ज्यादा उछली नहीं, बिल्कुल भी वहां पे गेंद जमीन के समांतर निकल गई विकेट कीपर के पास। मतलब जितना एक्सपेक्टेशन था कि गेंद ऊपर आएगी उतनी ऊंची उठी नहीं बिल्कुल सागर के लिए ये गेंद। परेशानी बढ़ती हुई क्लियर कट स्ट्राइकर्स गोल्ड कर्नाटका टीम के लिए। 26 गेंदों में चाहिए 53 रन। फिर एक बार चले प्रजोत, हवा में गेंद सामने खेल दिया है। ताकत भी है, नजाकत भी है और गेंद तब तक बाउंड्री के बाहर है, क्या देखना होगा। जी हां, बाउंड्री के बाहर है। एक टप्पे के साथ गेंद बाउंड्री के बाहर। साउली क्रिएशन चौका। बहुत देर के बाद हमें बाउंड्री यहाँ पर देखने को मिल रही है इस पारी में, और जिस बाउंड्री की जरूरत थी वो यहाँ पर आखिरकार मिलती हुई आप देख सकते हैं। रिप्ले में थोड़ी सी आउट ऑफ द रीच थी उनकी, लेकिन बहुत ही बढ़िया तरीके से अंजाम दिया उस शॉट को। मौका बना था जरूर सरोज प्रमाणिक के लिए, लेकिन उस मौके को बना नहीं पाए। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रयास किया था, लेकिन अंत में मिलेंगे 4 रन। अंत भला तो सब भला। अगर गेंद को अंदर भी ढकेल देते फिर भी अंपायर बाउंड्री करा देते थे, क्योंकि उनका कांटेक्ट बाउंड्री लाइन के बाहर था। ऑनसाइड में गेंद को प्लेस किया, वहां पे खिलाड़ी मौजूद है। करण वाला गेंद को कवर करके डायरेक्ट करने की कोशिश, लेकिन तब तक क्विक सिंगल कंप्लीट किया इस गेंद के ऊपर। उसके साथ 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। रन बने हैं 11। 2 ओवर के बाद 5.5 का औसत। ये देखिए इस शॉट को जिस तरह से खेला गया, करण वहां पे थे, गेंद को फर्स्ट अटेम्प्ट ने कवर किया और सीधे नॉन स्ट्राइकर की दिशा में गेंद को फेंकने की कोशिश। तब तक बल्लेबाज सागर ने 1 रन वहां से चुरा लिया। तो 2 ओवर की समाप्ति, रन बने हैं 5.5 के औसत से 11 रन। और ये देखिए हमारा कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो पहले दिन के साथ हमारे विराट चंद्रकर जो हमारे ऑफिशियल स्कोरर है, और सनी जो आज जुड़ चुके हैं इस फाइनल डे के। और आप देखिए 2 ओवर में 11 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। 59 रनों का लक्ष्य है। क्या लगता है सनी कि आने वाली 4 ओवर में ये रन बन पाना मुश्किल है या मुमकिन है? सर देखिए, बूंद बूंद से सागर भरने वाला नहीं है। आपको बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे, कैलकुलेटेड रिस्क उठाना पड़ेगा, तभी जाकर आप इस मुकाबले में अपनी पकड़ बनाए रखेंगे। वरना आपके सामने बहुत ही तगड़ी गेंदबाजी है। अगर इस तगड़ी गेंदबाजी के ऊपर आपने कड़े प्रहार नहीं किए तो बहुत पीछे रह जाएंगे आप इस मुकाबले में। We also say thanks to tennisec.in for the cameraman Ajit. Thank you. हमारा कमेंट्री बॉक्स ने कवर किया था। फिर एक बार दूर वाले छोर से गेंदबाजी मोर्चे पे एक नया गेंदबाज आता हुआ, करण अंबाला। After 2, it's 11. 59 is the target. Required 112 run. 48 required from the 24 delivery. रिवर्स अटेम्प्ट किया है। खिलाड़ी मौजूद है सामने की दिशा में। पॉइंट से गेंद को उठाएंगे और तब तक 1 रन का इजाफा नहीं, बिल्कुल रन लिया नहीं है, मौका नहीं दिया इस रन लेने, वहां पे रन लेने का, और सीधे खिलाड़ी के हाथ में गेंद। बैंगलोर के खिलाड़ी रिवर्स खेल में माहिर है, जिसका जायजा विराज ने भी लिया है पिछले 2 साल में। फिर एक बार तैयार। ये लेग स्टंप के ऊपर गेंद थी, लॉक करने की कोशिश, हल्का से गेंद को खेल दिया और वहां से मिलेगा महज 1 रन। सिंगल डबल से कोई बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है आरजे ग्रुप देवत टीम का, क्योंकि 59 रनों का लक्ष्य है। अब तक रन बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर 12 और काफी बड़ा अभी भी टोटल बाकी है। 47 रन अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए। स्टिल रिक्वायर 47 टू विन। स्ट्राइक एंड पे राजेश। करण की अगली गेंद, इस गेंद को हवा में खेलने की कोशिश, खिलाड़ी गेंद के नीचे, आसान सा मौका बनेगा, मजबूर किया शॉट को खेलने के लिए। लास्ट मोमेंट पे शॉट को चेक करने की कोशिश और वहां पे ऊपरी सिरा, मोटा सिरा लिया और सीधे प्रजोत के हाथ में एक गेंद और ये बल्लेबाज आउट होता हुआ। जेवीए ब्रदर्स विकेट। राजेश कुल मिलाकर उन्होंने बनाए 3 रन और लौटे पवेलियन की ओर। बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी करण अंबाला द्वारा। आप देख सकते हैं रिप्ले में थोड़ी सी गेंद शॉर्ट पिच थी, लेकिन पड़ने के बाद थोड़ी सी अंदर आई और शॉट को चेक करने की कोशिश में कैच थमा बैठे और आसान सा विकेट यहां पर गिरता हुआ। तीसरा झटका महज लगता हुआ।
अब देख सकते हो सनी की ऑफ कटर बॉल थी, गेंद अंदर आ रही थी, समझ नहीं पाए और गेंद हवा में खेल बैठे और क्लियर कट स्ट्राइकर्स गोल्ड कर्नाटका टीम की उम्मीदों को लगता हुआ एक बड़ा झटका। राजेश जो मिस्टर कंसिस्टेंस के नाम से जाने जाते इस श्रृंखला में और काफी बढ़िया बल्लेबाजी की थी अपनी टीम के लिए राजेश पुजारी ने, उनका विकेट चटका है, सबसे इंपॉर्टेंट विकेट। और बल्लेबाजी के लिए नए बल्लेबाज साइश जोरे जो लोकल प्लेयर है, गोवा के प्लेयर है, पिछले मैच में कुछ खास नहीं कर पाए थे यहाँ पे, लेकिन अब अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। साइस जोरे को यहाँ पर साबित करना होगा कि उनको इस टीम में चुना गया है। पिछले मुकाबले में कुछ खास नहीं किया था, लेकिन अब इनके पास वो मौका है और देखना होगा मौके को किस प्रकार के साथ भुना पाएंगे ये खिलाड़ी। ये देखिए 7 विकेट अब तक इस श्रृंखला में करण अंबाला के गेंदबाजी में, उसका जिक्र फिर एक बार करेंगे। अगली गेंद, ये गेंद देखिए फाइंड की दिशा में गेंद को खेलने की कोशिश थी, वहां पे टाइमिंग नहीं कर पाया इस गेंद के ऊपर और वहां से इशारा था हुआ लेग बाइज का। फिर एक बार देखेंगे वो आंकड़े जो श्रृंखला में हमने देखे हैं इस गेंदबाज के द्वारा, किस तरह से गेंदबाजी हुई है पूरे श्रृंखला में, अच्छी गेंदबाजी, इसमें कोई संदेह नहीं। पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया 11 इंदौर के सामने 1 और 11 रन, कोई विकेट नहीं। दूसरा मुकाबला भरी भवानी वैभववाड़ी के सामने 1 और 4 रन इकोनॉमिकल। उसके बाद शिरसा स्पोर्ट्स त्विशा 11 के सामने 1 ओवर में 12 रन लेकिन 2 विकेट। शिवम कंप्यूटर्स के सामने 10 रन और 4 विकेट 2 ओवर में। रिवर्स खेलने की कोशिश, 2 पैरों के बीच में से गेंद निकल गई और आखिरी मैच जब खेले तब वहां से 1 विकेट निकाला था करण अंबाला ने। इस तरह से कुल मिला के 7 विकेट चटका चुके हैं इस सांगेम प्रीमियर लीग इस श्रृंखला में। रन बने हैं 13, मुसीबतें वहां पे मुश्किलें बढ़ती हुई प्लेट के स्ट्राइकर्स गोल्ड कर्नाटका टीम के लिए। महज 13 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। अगली गेंद के साथ फिर एक बार करण, हेलीकॉप्टर उड़ाए जरूर लेकिन वो गेंद कारपेट के सारे जाएगी डीप में। मिड विकेट पे खिलाड़ी मौजूद है, गेंद को कवर करेंगे, महज 1 रन मिलेगा और इस 1 रन के साथ 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। महज 14 रन बने हैं, अब 18 गेंदों का खेल शेष है। रन संख्या चाहिए 45, मतलब अब रिक्वायर्ड रन रेट जाके बढ़ चुका है, रिक्वायर्ड रन रेट 15 रन पर ओवर। सनी, एनी अपडेट, एनी क्वेश्चन? दबाव मैं कहूंगा यहाँ पर क्लियर कट स्ट्राइकर्स कर्नाटका टीम के ऊपर। हमने देखा था शाम के समय में यहाँ पर बरसात हुई थी, काले बादल छाए थे और बूंदाबांदी भी हुई थी, लेकिन अब यहाँ पर खतरों के बादल मंडराते हुए क्लियर कट स्ट्राइकर्स कर्नाटका टीम के ऊपर। आसान नहीं होगा यहाँ से इस पोजीशन से आगे खेल को खेलने के लिए, लेकिन आपको खुद के ऊपर वो भरोसा रखना पड़ेगा और तभी जाकर आप इस मुकाबले में कुछ कर सकते हैं, वरना बहुत पीछे रह जाएंगे आप इस मुकाबले में। आज के सेमीफाइनल का पहला मुकाबला थोड़ा सा एक तरफ ही हुआ था, लेकिन दूसरा मुकाबला एकदम नेट टू नेट फाइट, काटो भरा था, आखिरी ओवर तक वो मैच चला गया था। लेकिन यहाँ से अगर देखा जाए तो मैच थोड़ा सा एक तरफा होता हुआ ऐसे मैं कहूँगा, क्योंकि बड़े स्ट्रोक नहीं आए। एकमात्र चौका लगा अब तक इस इनिंग में, वो भी प्रज्योत अम्बेरे के खिलाफ बल्लेबाज सागर के बल्ले से। और सागर अभी भी ग्राउंड के अंदर है, स्ट्रगल कर रहे हैं ग्राउंड के अंदर। 9 गेंदे खेल चुके, 8 रन बनाए हैं। साई जोरे ने अब तक अपना खाता खोला नहीं है। 18 गेंदों का खेल शेष है और मैच को जीतने के लिए चाहिए 45 रन। रफ्तार के सौदार आते हुए गेंदबाजी मोर्चे पे मनीष राठी, काफी तेज तर्रार गेंद। चलो मैच शुरू कीजिए। काफी तेज तर्रार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और जब भी आते हैं राउंड विकेट, एंगल बनाते हुए, कोन बनाते हुए गेंद को निकालते हैं, ये इनकी पहचान है। पहले गेंद के साथ मनीष राठी गेंदबाजी मोर्चे पे, स्ट्राइक एंड पे है सागर भंडारी। कर्नाटक बैंगलोर की जमीन का एक सबसे बड़ा सितारा बल्लेबाजी करता हुआ ग्राउंड के अंदर। देखिए सागर के लिए डीप पॉइंट पे खिलाड़ी रखा है और खास करके ऑफ साइड में 3 खिलाड़ी रखे हैं। डीप पॉइंट है, कवर है और एक लॉन्ग ऑफ। ऑन साइड में गेंद को प्लेस किया, खिलाड़ी गेंद के नीचे, ये ट्रैप था, जाला बुना था और बड़ी मछली जाल में फंसती हुई। सागर भंडारी, बिग फिश इन द ट्रैप, बल्लेबाज आउट, जेवीए ब्रदर्स विकेट। सागर लौटे पवेलियन की ओर 8 रन बनाकर। बड़ी मछली नहीं, ये वेल मछली है और ये विकेट यहाँ पर खोज रहे थे और वो आखिरकार मिलता हुआ। ये आप देख सकते हैं, थोड़ी सी बाहर ये गेंद थी, हेलीकॉप्टर सा उड़ाया था, लेकिन जो एलिवेशन चाहिए था, जो संपर्क चाहिए था, ठीक तरह से मिला नहीं। इसके कारण सीधा गई फील्डर के हाथों में। एक और झटका यहाँ पर लगता हुआ, चौथा झटका यहाँ पर। बहुत ही नाजुक स्थिति यहाँ पर इस मेगा फाइनल के मुकाबले में क्लियर कट स्ट्राइकर्स कर्नाटका टीम की। जी हाँ, बिल्कुल सही जिक्र किया, नाजुक परिस्थिति।
नाजुक मुकाम से गुजरती हुई बल्लेबाजी करने वाली क्लियर कट स्ट्राइकर्स गोल्ड कर्नाटका टीम, लेकिन हर एक मैच में सबको अचंभित करने वाला परफॉर्मेंस दिखाई देता हुआ इस क्लियर कट स्ट्राइकर्स कर्नाटका टीम की तरफ से। सबसे इंपॉर्टेंट जब पहला दिन था, पहले दिन में आखिरी मुकाबला खेलने के लिए उतरी और वहां पे एक बहुत ही बेहतरीन खेल उनकी टीम ने उनको दिखाया। सिद्धिविनायक उसगांव जैसी एक नामी ग्रामी टीम, बड़ी टीम, बड़े कप्तान, बड़े प्लेयर्स उस टीम में थे और वहां पे 58 रन का पीछा करती हुई काफी खूबसूरत ये दृश्य इस एसएजी ग्राउंड का, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गोवा सांगे ओवल शेप ग्राउंड, और काफी खूबसूरत दृश्य tenniscricket.in के ऊपर इस ड्रोन कैमरे से दिखता हुआ। कमेंट्री बॉक्स में जुड़ चुके हैं हमारे धीरज नाइक, द ओनर ऑफ दक्ष साउंड। चारों तरफ से इस कैमरा द्वारा इस ग्राउंड का नजारा दिखता हुआ। ऑफ स्टंप के बाहर चले गए, स्क्वायर की दिशा में खेलने की कोशिश, वहां पे खिलाड़ी मौजूद नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑन साइड में 3 खिलाड़ी सेट कर चुके हैं। स्क्वायर लेग रखा है, मिड विकेट रखा है, लॉन्ग ऑन रखा है, थोड़ा सा वाइडिश, और वहां से अब रन बनना थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा है। मुनिंद्र आ चुके हैं बल्लेबाजी के लिए, पहली गेंद डॉट खेल चुके हैं, रन संख्या रुकी है स्कोर कार्ड के ऊपर, वो कुल मिलाकर 14, 14 लॉस ऑफ 4। दबाव बनाते हुए गेंदबाज बल्लेबाजों के ऊपर। अगली गेंद मनीष राठी की, बिल्कुल भी मौका नहीं देते, बिल्कुल मौका नहीं देते, एंगल करते हुए गेंदबाजी इस गेंद के ऊपर, और काफी तेजी के साथ रन बना वहां पे गेंद करते हैं। इसलिए मैं तो कहा था रफ्तार के सौदार गए वहां पे मनीष राठी। रिक्वायर रन रेट 18 के ऊपर जा चुका है। फिर एक बार वही हुआ है, बल्ला सिर्फ चला रहे लेकिन गेंद और बल्ले का कोई भी संपर्क नहीं है, और गेंद सीधे विकेट कीपर ओमकार के हाथ में। पूरी तरह से खामोश कर दिया है मनीष राठी ने इस ओवर में बल्लेबाजों को। थोड़ा सा मैच एक तरफा होता हुआ। हवा में गेंद, कैच का मौका बनेगा पॉइंट के खिलाड़ी को, आसान सा कैच, और कोई भी रन बिना बनाए वहां पे मुनिंद्र लौट चुके हैं और सीधे डगआउट की दिशा में। जेवीए ब्रदर्स विकेट। ताश की पत्तों की तरह यहाँ पर बिगड़ती हुई ये पारी, 5वां विकेट, यानी कि आधी टीम यहाँ पर डगआउट में लौट चुकी है क्लियर कट स्ट्राइकर्स कर्नाटका, और यहाँ से आगे का सफर बहुत ही मुश्किल सा दिखाई देता हुआ। शॉट खेलने का प्रयास था जरूर, लेकिन ठीक तरह से संपर्क नहीं हुआ, इसके कारण एक और झटका यहाँ पर लगता हुआ। इंपैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल किया गया, मदन रेड्डी आते हुए बल्लेबाजी के लिए। पहली बार क्लियर कट स्ट्राइकर्स टीम ने पहली बार किसी इंपैक्ट प्लेयर का चयन किया है, इस्तेमाल किया है, और मदन रेड्डी को मौका मिला है। मदन रेड्डी की जगह एक प्लेयर जयंत बाहर जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, लाजवाब लाजवाब, पूरी तरह से इंटरनेशनल लुक दिया है इस ड्रोन कैमरे के साथ tenniscricket.in ने। अगली गेंद, हवा में गेंद, लेकिन वो सीधे सा संपर्क हो नहीं पाया। लेकिन जो हमने ड्रोन व्यू देखा, हम इंटरनेशनल क्रिकेट में देखते हैं जो लाइट्स होती है, फ्लड लाइट्स होती है, उनके बगल से जब कैमरा गुजरता है ना, वही दृश्य यहाँ पे दिखाई देता है। ये देखिए, काफी खूबसूरत, बहुत ही सुंदर स्क्रीन के ऊपर। और मेडन ओवर, इस श्रृंखला का ये मेडन ओवर मनीष राठी के नाम, विकेट मेडन ओवर, 2 विकेट चटकाए। लाजवाब लाजवाब दृश्य दिखता हुआ। ये देखिए, पूरा ग्राउंड को कवर किया है ड्रोन कैमरे ने, और काफी खूबसूरत सा ये दृश्य आपके स्क्रीन के ऊपर tenniscricket.in द्वारा दिखता हुआ। तो थैंक यू सो मच tenniscricket.in टीम। गौरव सावंत खुद यहाँ पे मौजूद है, हमारे ऑपरेटर है वो कुणाल, और काफी बड़ी टीम उनके साथ इस श्रृंखला को अंजाम देती हुई अपने कैमरा द्वारा। तो कुल मिलाकर 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। विराज मुझे बताते हुए 4 ओवर के बाद रन संख्या बनी है महज 14 रन, जो 3 ओवर के बाद थे। अब यहाँ पे मुश्किलें बढ़ती हुई, 2 ओवर का खेल शेष है, 59 का लक्ष्य मैच को जीतने के लिए, और मैच पूरी तरह से एक तरफा होता हुआ। तो फील्डिंग टीम में भी यहाँ पे
पहली गेंद यहाँ पे डॉट, गेंदबाज है वो गेंदबाजी मोर्चे पे आते हुए करण, फिर एक बार, ओ ये फुल टॉस गेंद थी, डायरेक्ट करने की कोशिश, निशाना लगाया था लेकिन चूक गया वो निशाना, और वहां से मिलेगा महज 1 रन बल्लेबाज को। 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। अब हालात थोड़े से बिगड़ते हुए, थोड़ा सा दबाव बनता हुआ, ये देखिए साइज जोरे ऑप्शन के थोड़े से बाहर गेंद को स्लॉग हिट करने की कोशिश थी, पूरी तरह से एक तरफा होता हुआ मुकाबला सनी। फाइनल मैच में हमने 2 सेमीफाइनल देखे थे, काफी अच्छे वहां पे मैच दिखाई देते हुए, लो स्कोरिंग मैच जरूर थे। टीम की रन संख्या महज 15 रन स्कोर कार्ड को अंकित हो चुके हैं। करण गेंदबाजी मोर्चे पे निजी दूसरा ओवर, मदन स्ट्राइक एंड में मदन नए बल्लेबाज जो ग्राउंड के अंदर आ चुके हैं, ग्राउंड के अंदर एज ए इंपैक्ट। अच्छी गेंद, ले कटर बॉल, अंपायर के पास अपील, थोड़ा सा हाइट ज्यादा था इस गेंद के ऊपर, ये दिखता हुआ इस ओवर से, और पूरी तरह से खामोश कर दिया है। 5 ओवर प्रगति पथ पे 9 गेंदों का खेल शेष है, 44 रन चाहिए अभी भी मैच को जीतने के लिए। मैच अभी भी बन सकता है लेकिन बड़े स्ट्रोक चाहिए उसके लिए। छोड़ दिया इस गेंद को लेग स्टंप के बाहर, और काफी देर के बाद यहाँ पे वाइड आता हुआ, ये दूसरा वाइड इस इनिंग का। करण ड्राइव करना चाहते थे गेंद को ऑन साइड में बॉर्डर के सारे, लेकिन लीडिंग एज लेने के बाद गेंद निकल गई वो कवर की दिशा में, वहां से 1 रन मिलता हुआ बल्लेबाज को, और 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। स्कोर कार्ड को कुल मिला के वो 17 रन 17 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। करण की अगली गेंद साइज जोरे के लिए, ऑन साइड में गेंद को प्लेस जरूर किया है, खिलाड़ी है डीप में, और जब तक वहां से गेंद को कवर करेंगे तब तक महज 1 रन का इजाफा टीम के खाते में होता हुआ। तो जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, ऐसे लग रहा है कि जस्ट अब फॉर्मेलिटी बची है इस मैच में कुछ गेंदों की। 18 लॉस ऑफ 5, चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, गेंद हवा में खड़ी हो गई है, और खुद करण गेंद के नीचे आने की कोशिश, कैच को फिनिश किया, कैच को अंजाम दिया, अपना रिटर्न कैच वहां पे फिनिश करते हुए, और विकेट अपने नाम पे करते हुए 2 और 6 रन 2 विकेट, जेवियर ब्रदर्स विकेट। क्या लाजवाब डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला आरजे ग्रुप देवर द्वारा। अब देख सकते हैं रिप्ले में किस प्रकार ये गेंद बहुत ऊंची गई थी, और करण अंबाला वहां पर तैनात थे, अपने फॉलो थ्रू में इस कैच को लपक लिया। 5 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त हो चुका है, और 5 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर पहुंच चुका है सिर्फ और सिर्फ 18 रन 6 विकेट के नुकसान पर, यानी कि जीतने के लिए आने वाली 6 गेंदें और 41 रन की आवश्यकता। तो मैं कहूंगा औपचारिकता है बाकी सर इस मुकाबले में। एक हाथ तो मुझे लगता है कि लगा लिया है इस चमचमाती ट्रॉफी के ऊपर आरजे ग्रुप देवर टीम ने। अगली 6 गेंदों के बाद चैंपियंस घोषित कर दिए जाएंगे इस सांगेम प्रीमियर लीग 2026 के। आखिरी की 6 गेंदें, साइज जोर स्ट्राइक एंड के ऊपर, बहुत ही करारा प्रहार यहां पर, और ये गेंद गई सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। अब क्या फायदा जब चुड़िया चुग गई खेत। ऐसे बाउंड्रीज मैं कहूंगा इनिंग्स के स्टार्टिंग में आने चाहिए थे। बहुत ही बढ़िया ये गेंद सटीक लाइन और लेंथ से गेंद जाती हुई सीधा विकेट के ऊपर के दस्तानों में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से डॉट डिलीवरी। यहां पर पहली गेंद के ऊपर चौके के साथ स्वागत किया था गेंदबाज का, लेकिन उसके बाद बहुत ही बढ़िया कमबैक मैं कहूंगा
खामोश रखा इस गेंद के ऊपर साइज जोरे को। चार गेंदे और 37 रन। औपचारिकताएं बाकी इस मुकाबले में। ये देखिए गेंद पड़ने के बाद अपना कांटा बदलती हुई साइज जोरे, वो प्रयास करने के चक्कर में उस प्रयास को परिवर्तित नहीं कर पाए। जी हाँ बिल्कुल, नो बॉल यहां पर घोषित कर दिया है अंपायर ने। जी हाँ, नो बॉल यानी कि फ्री हिट, तोहफा यहां पर मिलता हुआ साइज जोरे को। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, गेंद जारी है लॉन्ग ऑन क्षेत्र में। सरोज प्रमाणिक वहां पर तैनात, सिर्फ एक सिंगल मिलेगा इस गेंद के ऊपर। 3 गेंदों का खेल शेष और मैच 35 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। फिर से एक बार घुमाने का प्रयास था लेकिन गेंद जाती हुई वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में, सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। कप्तान आखिरकार अपने रंग दिखाते हुए सिर्फ 2 गेंदों का खेल अभी भी बाकी। 31 रन और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, यानी लगभग ये मुकाबला जीत लिया है आरजे ग्रुप देवट टीम ने। ये गेंद हवा में, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन जा बिल्कुल मना किया रन को लेने के लिए। आखिरी गेंद और इसी के साथ ये मुकाबला, ये प्रतियोगिता जीत ली है आरजे ग्रुप देवट टीम ने। देखिए, पंखों से उड़ान नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है, और हौसले यहां पर बुलंद रखे इस पूरी प्रतियोगिता में आरजे ग्रुप देवट टीम ने, और इसके बलबूते पर वो है इस सांगेम प्रीमियर लीग 2026 के महाविजेता। हर्षोल्लास यहां पर होता हुआ आरजे ग्रुप देवट के खेमे में, ये ऊर्जा, प्रतिभा, मनोबल सब कुछ यहां पर दिखता हुआ इस सांगेम के मैदान के भीतर। क्या डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस रहा आरजे ग्रुप देवट टीम द्वारा। आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो पहले सेमीफाइनल के मुकाबले में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया था, उसके बलबूते पर मेगा फाइनल में प्रवेश किया, और इस मेगा फाइनल में वन साइडेड तरीके से मैच को समाप्त किया और बन चुके हैं महाविजेता आरजे ग्रुप देवट ए सांगेम प्रीमियर लीग 2026 के। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर किस प्रकार के साथ हर्षोल्लास होता हुआ। हॅलो, हांव सगळ्यां लागीं मागता की तांच्यांनी मातशें लागीं येवचें, आमी हावजी सुरवात करता.